اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پنجاب حکومت کی 1 مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کی تجویز، سرکاری دفاتر میں کام کی مشروط اجازت دینے پر غور، جبکہ محدود اوقات کے ساتھ سرکاری دفاتر چلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ محکمے میں حفاظتی تدابیر پر عمل کروانا سربراہ کی ذمہ داری ہوگی، تجویز پیش کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ ایک جگہ 3 سے 4 ملازم اکٹھے نہیں بیٹھ پائیں گے۔ ایکسپورٹ سے منسلک صنعتوں کو کام کی اجازت دی جائے گی، جبکہ پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی حتمی منظوری کے بعد اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، پنجاب حکومت کی 1 مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کی تجویز زیر غور ہے۔ سرکاری دفاتر میں کام کی مشروط اجازت دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مزید کن حوالوں سے غور کیا جا رہا ہے، جانیں گے ریحان گل سے۔ جی ریحان، بتائیے گا۔ جی، پنجاب میں موجودہ لاک ڈاؤن کی مدت کل رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ جمعے کی رات کو، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب نے لاک ڈاؤن میں ایک دفعہ پھر توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے اور ممکنہ طور پر 1 مئی تک مزید اس میں توسیع کی جائے گی، لیکن وفاقی حکومت کی اجازت سے مشروط ہوگا، کیونکہ پنجاب کی جانب سے جتنے فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ وفاقی حکومت کی جانب سے حتمی منظوری آنے کے بعد کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ پرپوزل بھی وفاقی حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ اس کے علاوہ 2 مزید پرپوزل زیر غور ہیں کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کے دوران ایکسپورٹ سے متعلق جتنی بھی انڈسٹریز ہیں میکسیمم ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ آپریٹ کر سکیں، فعال ہو سکیں، لیکن اس دوران انہیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو حفاظتی SOPs جاری کیے گئے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ دوسری ایک اہم تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرز پر کام کیا جائے اور ممکنہ طور پر سیکریٹریٹ کے یا جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں ملازمین کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابھی صرف سیکریٹری آفس تک کام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی تجویز ہے کہ مزید ملازمین کو بھی الاؤ کر دیا جائے تاکہ کام چل سکے، لیکن اس میں بھی SOP سخت ہوں گے۔ جو محکمے کا سربراہ ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہاں پر لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دے، تمام حفاظتی تدابیر کو یقینی بنائے اور 3 سے 4 ملازمین اکٹھے ایک جگہ نہ بیٹھے۔ یہ 2 سے 3 تجاویز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوائی جائیں گی اور فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بعد ان کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ شکریہ آپ کا ریحان گل۔ ادھر کرونا وائرس کی وبا کے باعث پنجاب میں مالی بحران بڑھ گیا۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں پر مزید فنڈز کے اجرا پر پابندی لگا دی۔ آئندہ سے اب کسی منصوبے اور محکمے کو ترقیاتی فنڈز جاری نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ کرونا وائرس کی وبا سے پنجاب میں مالی بحران بڑھ گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں پر مزید فنڈز کے اجرا پر پابندی عائد کر دی۔ آئندہ سے اب کسی منصوبے اور محکمے کو ترقیاتی فنڈز جاری نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ سے اب کسی بھی محکمے کو فنڈز جاری نہیں ہوں گے۔ کرونا وائرس کی وبا سے پنجاب میں مالی بحران بڑھ گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں پر مزید فنڈز کے اجرا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے، علی رام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی، بتائے گا آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ پنجاب میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث جہاں پنجاب میں مالی بحران ہے اور اسی کی بنیاد پر اب PND بورڈ کی طرف سے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس میں فردر ریلیزز جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی ہے، اور پنجاب حکومت کے احکامات پر جو ADP کا بجٹ مختص کیا گیا تھا اس میں اب 100 ارب روپے کا بجٹ ابھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن مزید بجٹ کے اجرا، مختلف اسکیموں کے اجرا کے لیے اس پر اب پابندی عائد کر دی۔ اس پر ذرائع کا کہنا ہے اس پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ مزید نان ڈیولپمنٹ سائٹ پر مختص کر کے ڈائیورٹ کر کے جو کرونا وائرس کے حوالے سے اور دیگر انتظامی اخراجات ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ یعنی ذرائع نے بتایا کہ اب جو ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جانا تھا اب اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اب 9 فردر ریلیزز ہوگی اس مختلف منصوبوں کے لیے، جو کہ رواں مالی سال میں پنجاب حکومت نے مختلف منصوبہ جات مکمل کرنے تھے۔ 9000 سے زائد منصوبہ جات ہیں جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے، لیکن اس پر اب کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو مالی بحران پنجاب میں پیدا ہوا ہے اس کی بنیاد پر اب یہ فیصلہ کیا کہ اب ڈیولپمنٹ سائٹ کا جتنا بجٹ ہوگا وہ ڈائیورٹ کیا جائے گا نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، یعنی کہ مالی انتظامی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی جو PND بورڈ کی طرف سے ذرائع نے بتایا کہ 6 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ سائٹ پر منتقل کیا گیا، لیکن اب حکومتی احکامات پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا مزید بجٹ PND بورڈ کے پاس پڑا ہے وہ اب خرچ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی مختلف اسکیموں کے لیے ریلیز کیا جائے گا محکموں کو، بلکہ اب وہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جو انتظامی معاملات اور ہیلتھ کے حوالے ہیلتھ سیکٹر میں مزید بجٹ کو۔ ٹھیک ہے علی رام، بہت شکریہ آپ کا۔ کورونا صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہر میں جاری جزوی لاک ڈاؤن کو 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ 1 ماہ میں قانون شکن عناصر کے خلاف 2069 FIRs درج کی گئی۔
1,87,000 शहरियों की चेकिंग की गई। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक गैर जरूरी नकलो हरकत पर 1,76,000 शहरियों को घर भेजा गया, जबकि 1,65,000 से ज्यादा गाड़ी मालिकान से सफर की वजह दरियाफ्त की गई। 6,853 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। 93,694 मोटरसाइकिलों, 24,628 रिक्शों की चेकिंग की गई। डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर से 8,764 बड़ी गाड़ियों को चेक किया गया है। इस हवाले से आपको बताते चले, लॉकडाउन को एक माह का अरसा गुजर गया है। कोरोना सूरत हाल के बायस शहर में जारी जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि एक माह में कानून शिकन अनासिर के खिलाफ 2,069 FIR का इंदराज किया गया, जबकि 1,87,000 शहरियों की चेकिंग की गई। डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद की जानिब से बताया जा रहा है कि गैर जरूरी नकलो हरकत पर 1,76,000 शहरियों को घर भेजा गया है। इस हवाले से इदाद शुमार हैं जो कि जारी किए गए हैं कि 1,65,000 से ज्यादा गाड़ी मालिकान से सफर की वजह दरियाफ्त की गई। शहर में कोरोना के शिकार जारी हैं। अटारी सरोबा गली नंबर 17 से एक घर से 10 कोरोना मरीजों की तस्दीक हो गई। जिला इंतजामिया की पुलिस को फौरी गली सील करने की हिदायत जारी की गई हैं। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफे का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक अटारी सरोबा की गली नंबर 17 के एक ही घर के 10 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद इलाके को रेड जोन करार देते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से मुतलका गली को सील करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से पुलिस को हिदायत भी जारी की जा चुकी है। जिला इंतजामिया ने पुलिस को अटारी सरोबा की गली नंबर 17 से गैर जरूरी नकलो हरकत को महदूद करने की हिदायत भी जारी कर दी है। शहर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 772 हो गई है। शहर में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 27 हो चुकी है। म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा 186 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल में कोरोना के 20 मुसद्दका मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे उनसे। वकार घुमन, बताएगा जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, किस हद तक ताल्लुक है इसका? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर शहर में लॉकडाउन को एक माह हो गया है और इस दौरान जब से ये इसमें नरमी हुई है उस वक्त से कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। गुज़श्ता 40 रोज़ के दौरान लाहौर शहर में 772 कोरोना के जो मुसद्दका मरीज़ अब तक रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त अगर बात की जाए तो इनमें से 27 अफराद लाहौर में से जान से बाजी हार चुके हैं। 27 अफराद कोरोना वायरस की वजह से वफ़ात पा चुके हैं। इस वक्त मैं मेयो अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त 186 कोरोना के जो मरीज़ हैं वो सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में कोरोना के जो हैं वो 20 मरीज़ जान से बाजी हार चुके हैं। और इस वक्त लेकिन इसके साथ ये भी है कि अब तक शहर में 772 अफराद में से 242 अफराद हैं वो कोरोना वायरस से को शिकस्त देकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। ताहम जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है तब से जो कोरोना के मरीज़ों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। 772 इस वक्त कन्फर्म पेशेंट्स हैं जो कि लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में, एक्सपो सेंटर में, मेयो हॉस्पिटल में, जिना अस्पताल में और जितने क्वारंटीना सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। 27 अफराद सिर्फ लाहौर में जान बहक हो चुके हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें बाकी अस्पतालों में तो वहाँ पर भी इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। टोटल अब तक अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में जो कोरोना वायरस से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद है वो 27 है। जी ठीक है वकार घुमन, यहाँ पर ये भी बताते चलिएगा मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, लोग सेहतयाब भी हो रही हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक की आमद है, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह रोज़ा होगा। इस हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाता है रमज़ान में? जी बिल्कुल, कोरोना से बचने का जो सबसे बड़ा इलाज बताया जा रहा है, परहेज़ बताया जा रहा है, वो यही है कि आप घर रहेंगे, महफूज रहेंगे। जितना आप बाहर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये वायरस फैलने का खदशा है। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और इस दौरान ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसकी वजह से कल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। कल हमने मुख्तलिफ इलाके रिपोर्ट किए
जहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन और जो मर्द हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। सोशल समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें पहले की निस्बत ज़्यादा कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में भी अगर लोगों ने हुकूमती तदाबीर पे हुकूमती अहकामात पर अमल ना किया तो इसको कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं इनमें मज़ीद बढ़ने का खदशा है। क्योंकि अभी गुज़श्ता 2 रोज़ से हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुख्तलिफ सनतों को, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को काम करने की इजाज़त दी गई है, उसकी वजह से जो सड़कों पे है वो लोगों का रश ज़्यादा है, सड़कों पे गाड़ियों की तादाद बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने खुद ही जो अपनी दुकानें हैं उनको खोलना शुरू कर दी है, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं उन पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि जब हुकूमती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा है, अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा, तो उसके बाद कोरोना वायरस के जो मरीज़ों की तादाद है वो यकदम बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी वजह यह है कि लोग बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये मर्ज फैलता जा रहा है। लोगों को भी एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। ठीक है वकार घुमन, यहाँ पर ये सवाल भी अहम होगा कि डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं, शिकवा किया जा रहा है कि उनकी एहतियात के लिए हुकूमत काम नहीं कर रही। तो क्या यहाँ पर अस्पताल में फैसिलिटीज मौजूद है कि मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उनको कैटर किया जा सके? बिल्कुल जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से काफ़ी रोज़ से गुज़श्ता 700 रोज़ से भूख हड़ताल जारी है, जिसमें ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो चेयरमैन हैं वो भूख हड़ताल पर हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इनको जो हिफाजती सामान है वो मुहैया नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ा उनका मुतालबा ये है कि इनको प्रॉपर जो हिफाजती सामान है वो दिया जाए, वरना इनकी ये हड़ताल का सिलसिला जारी है। भूख हड़ताल इनकी जानिब से जारी है और अभी तक इनके जो मुज़ाकरात हैं वो किसी से कामयाब नहीं हो सके। ताहम आज मुख्तलिफ NGOs की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को किट्स फ्राहम की गई हैं, PPE किट्स फ्राहम की गई हैं। ताहम ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से अभी भी उनकी जानिब से जो स्ट्राइक है वो जारी है। वकार घुमन आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम कैसे किया जाएगा? खाने पीने के स्टॉल्स, ठेले लगाने की मशरूत इजाजत देने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि स्टॉल्स लगाने की इजाजत होगी, बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। इस पर बात करेंगे क़ज़ाफ़ी भट्ट से। जी क़ज़ाफ़ी भट्ट। बिल्कुल जी, रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है कि सहरी और इफ्तारी के दौरान जो है वो किस तरीके से सहरी और इफ्तारी कैसे की जाएगी। क्या सहरी और इफ्तारी के दौरान समोसे, पकोड़े, दही भल्ले जो कि शहरियों का एक मरगूब ग़ज़ा है रोज़ों के दरमियान, क्या वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने खासा गौर किया है और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस बात का फ़ैसला किया गया है कि मशरूत तौर पर इजाज़त दी जाएगी दही भल्ले, समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट लगाने वालों को इफ्तारी के टाइम पे कि वो अपने ठेले और स्टॉल्स लगा सकेंगे, ताकि लोग इफ्तारी के टाइम जो इन चीज़ों को जो है वो ख़रीद सकें। लेकिन इसके लिए SOPs बनाए जाएंगे। सहरी के टाइम जो है, चूँकि लोगों ने पराठा खाना होता है, घरों में तो मिलते हैं, लेकिन जो शहर से बाहर के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं वो उमूमन बाज़ार से जो है वो ख़रीदते हैं। इसलिए ये भी मशरूत तौर पर इजाज़त दी जाएगी कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद होंगे, लेकिन उसके बाहर स्टॉल्स लगाने की इजाज़त होगी कि वहाँ पे पराठा, अंडे, चना और दीगर जो चीज़ें हैं वो लोग ख़रीद सकें। लेकिन बैठकर खाने पर ममानत होगी, बैठकर कोई नहीं खा सकेगा, सिर्फ पैक करवा के लोग ले जा सकेंगे कि घर जाके वो पराठों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ लुत्फ़अंदोज़ सकें सहरी के दौरान। सहरी और इफ्तारी के दौरान SOPs बनाए जाएंगे। सहरी के वक्त फासले पर लोग खड़े होंगे, पराठा, अंडा जो भी लेना होगा मुतल्लिका स्टॉल से वो फासले पर खड़े होंगे। बनाने वाला जो है वो ग्लव्स का और मास्क का इस्तेमाल करेगा और हाथ धोने का बाकायदा एहतमाम वहाँ पे रखा जाएगा। जबकि जो इफ्तारी का टाइम भी यही SOPs अपनाए जाएंगे। फासले पर लोग खड़े होंगे, जमघटा नहीं बनाने दिया जाएगा। अगर इन SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो स्टॉल्स लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस बात का भी फैसला किया गया कि 1 हफ्ते तक
मामलात को देखा जाएगा कि एक हफ्ते तक मामलात कैसे चलते हैं, क्या इन SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होता है। अगर अमल दरामद हुआ तो इस मामूल को चलने दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके खिलाफ चीज़ें गई तो फिर इन मामूलात को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और ये भी ज़राए का कहना है कि लॉकडाउन के जो मुकम्मल लॉकडाउन इलाके हैं वहाँ पर इन चीज़ों की फ़रोख्त की ममानत होगी। जहाँ पर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी है वहाँ पर स्टॉल जो हैं उन्हें मशरूत तौर पर लगाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है कसाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान से कबल ही सब्जियों फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। बेशतर सब्जियों की कीमतों में 1 से 60 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों में इजाफे के हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी निरफनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। सरकारी निरफनामे के मुताबिक मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं, जैसे कि माह रमज़ान की आमद है तो मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म नज़र आता है और सरकारी निरफनामे पर ही बेशतर सब्जियों की कीमतों में 1 रुपये से लेकर और 60 रुपये तक का इजाफा किया गया है। सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो आज ही जो देसी लीमू है उसकी कीमत में सरकारी निरफनामे पर किया गया और उसकी कीमत जो है वो 60 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह से आलू जो है वाहिद आलू की कीमत है जिसमें 3 रुपये फ़ी किलो कमी देखी गई और आलू जो है 3 रुपये कमी के बाद 57 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। जबकि प्याज की कीमत में आज मज़ीद 2 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और प्याज की कीमत जो है वो 57 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि टमाटर की कीमत 38 रुपये ही है। लहसुन देसी जो है उसकी कीमत की अगर बात की तो उसकी कीमत जो है वो 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अदरक थाईलैंड का जो है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और 10 रुपये इजाफे के बाद उसकी कीमत 255 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि चाइना का जो अदरक है उसकी कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और उसकी कीमत जो है वो 310 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह से दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जो है वो किया गया है। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत के हवाले से तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज जो है वो मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी 11 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त है वो 202 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। जबकि अगर फार्मी अंडों की कीमत की बात की तो फार्मी अंडों की कीमत 104 रुपये फ़ी दर्जन पर मुस्तहकम नज़र आती है। ताहम शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी निरफनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियाँ जो हैं उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के दौर में। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। फ्लोर मिल्स की रमज़ान की आमद पर हड़ताल की धमकी। वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान का मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मुझसे राबते में है, अब्दुल अलीम खान की जानिब से कहा गया। गंदम कटाई के सीज़न में कोटे की ज़रूरत नहीं रहती। अब्दुल अलीम खान की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि गंदम की कटाई अभी शुरू नहीं हुई, वो मिल्स को कोटा देंगे। वज़ीर खुराक पंजाब ने कहा कि रमज़ान उल मुबारक की आमद पर हड़ताल की कॉल देना मुनासिब नहीं। वज़ीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर सैफ अंजुम, CCPO ज़ुल्फ़िकार हमीद और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। IG शुएब दस्तगीर, डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। एहसास प्रोग्राम में बायोमेट्रिक के मसाइल पर नादरा की टीमों की मदद लेने का फैसला किया गया। जनूबी पंजाब में 47 लाख एकड़ पर गंदम की कटाई की जा चुकी है। इजलास में इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 22 लाख एकड़ पर चने की फसल की कटाई की जा चुकी है। गंदम खरीदारी का अमल जारी है। स्टॉक में 365,000 टन गंदम मौजूद है। उधर माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा। चांद नजर आने की सूरत में जुमे को पहला रोजा होगा। मामला क्या है जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा, तफसीलात बताइएगा। जी, माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसकी सरबराही डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी करेंगे। इस इजलास में चारों मसालिक के जो जय्यद उलमा इकराम हैं वो शरीक होंगे और उनके साथ साथ महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान मौजूद होंगे ताकि शहर से चांद नज़र आने की शहादत मसूल की जा सके। जो जय्यद उलमा इकराम आज के होने वाले जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में शरीक होंगे उसमें जामिया अशरफिया के मुहतमिम मौलाना फजल रहीम अशरफी, इसके अलावा खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद और इदारा मिनहाजुल हुसैन से डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर और उसके साथ साथ जामिया नईमिया से मुफ्ती इंतखाब नूरी समेत दीगर जो उलमा इकराम हैं वो इसमें शरीक होंगे। ये कमेटी ऐवान औकाफ में मौजूद होगी। ना सिर्फ शहर बल्कि पंजाब भर से जो चांद नजर आने की शहादतें हैं
وہ मौसूल की जाएंगी और उसके बाद नज़र आने या ना नज़र आने की सूरत में जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है उसको आगाह किया जाएगा। ताहम माह मुक़द्दस के चाँद नज़र आने और ना नज़र आने का हतमी ऐलान जो है वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। आज शाम में ये ऐवान औक़ाफ़ में इजलास होगा जिसमें चाँद नज़र आने की शहादत मसूल करके मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे एक ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि नैब लाहौर ने फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी के मोहम्मद हफीज़ को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मोहम्मद हफीज़ पर सादा लो शहरियों से फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलज़म को आज एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मुलज़म मोहम्मद हफीज़ के फ्रॉड से 1016 अफराद मुतासिर हुए हैं। सोसाइटी इंतज़ामिया पर 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। पाक फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी को 350 एकड़ ज़मीन देनी थी। सोसाइटी के नाम से मुतादिद लोगों को फॉर्म भी फरोख्त किए गए। मुलज़म मोहम्मद हफीज़ फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी के मालिक सलीम हनीफ का भाई है। गिरफ्तार मुलज़म की पर्ल डी गल्फ के नाम से अपनी एक कंपनी थी। मुलज़म की कंपनी का फ़ज़ाइया सोसाइटी के साथ डेवलपमेंट का मुआहदा हुआ था। मुआहदा पर पूरा ना उतरने की मद में उसे गिरफ्तार किया गया है। उधर ट्रैफिक पुलिस के निराले काम वार्डन ने साइकिल पर कुल्फी बेचने वाले का भी चालान कर दिया। लकड़ मंडी के करीब वार्डन अदनान ने कुल्फियां बेचने वाले का चालान किया। ट्रैफिक वार्डन ने साइकिल पर कुल्फियां बेचने वाले को 200 रुपए जुर्माना कर दिया। टारगेट मुकम्मल करने के लिए कुल्फी वाले का चालान किया गया। ये मामला क्या है जान लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, क्या टारगेट पूरा करने के लिए साइकिल वाले का चालान भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रावी रोड का इलाका है जहां पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से साइकिल पर कुल्फियाँ फरोख्त करने वाले का भी चालान कर दिया गया है। रावी रोड का इलाका लकड़ मंडी है जहां पर कुल्फी फरोश अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा था कि इस दौरान उसका कहना है कि ट्रैफिक वार्डन अदनान है जो कि मौका पर पहुंचा, जिसने पहले तो उसकी साइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक वार्डन अदनान की जानिब से साइकिल पर कुल्फियाँ फरोख्त करने वाले का 200 रुपये का चालान कर दिया गया है। सिटी 42 को चालान कॉपी जो है वो मौसूल हो गई है। अलबत्ता जो ट्रैफिक वार्डन का वीडियो बयान है उसमें उसका कहना है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पहले ही उनके घरों में फाके चल रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक वार्डन की जानिब से चालान शुरू कर दिया गया, जो कि सिर्फ अपना चालान टारगेट मुकम्मल करने के लिए साइकिल पर कुल्फियाँ फरोख्त करने वालों को चालान किए जा रहे हैं। इस वाले से जो कुल्फी फरोश है उसने आला पुलिस हुकाम से अपील की है कि वाक़े का नोटिस लेकर ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो अपने बच्चों का बासानी पेट पाल सकें। अंधेर नगरी चौपट राज है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि लियाकताबाद में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल कर दिया गया। डाकुओं ने मुज़ाहमत पर दुकानदार हाफिज फारूक पर फायरिंग कर दी। फारूक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फारूक जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी, जबकि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात जारी हैं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान किया गया है। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स ने स्टोर्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हवाले से हतमी फैसला आज शाम को होगा। आरिफ शाह की जानिब से बताया गया है हुकूमत ने मुलाजमीन को बुनियादी हकूक फराहम नहीं किए। आज मुतालबात ना माने गए तो कल मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद होंगे। चंद अनासर वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को नाकाम करना चाहते हैं। चेयरमैन एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है मंडी बहाउद्दीन के मुलाजिम मलिक अल्ताफ के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, चेयरमैन एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, मुतालबा किया जा रहा है कि रमजान में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस दिया जाए। पंजाब असेंबली की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत होगा। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी नुमाइंदगान भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में किन बातों पर बातचीत की जाएगी मालूम करेंगे अली अकबर से। जी अली। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की जो खुसूसी कायमा कमेटी है उसका इजलास होगा। इस वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में कोरोना की सूरत हाल के ऊपर जो है जायजा लिया जाएगा, जबकि हुकूमती नुमाइंदी जो है वो सूबाई वज़ीर कानून करेंगे। इस इजलास में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदे शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हसन मुर्तज़ा, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इस इजलास में बताया जा रहा है कि कोरोना की
सूरत-ए-हाल के साथ साथ फाइनेंस के मैटर जो हैं वो भी डिस्कस होंगे और ख़ास तौर पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से निशानदेही की गई थी कि जेल खाना जात के हालात कुछ बेहतर नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो जेल खाना जात का नुमाइंदा भी वीडियो लिंक के ज़रिए जो है इस इजलास में शरीक होगा और जेल की सूरत-ए-हाल के ऊपर जो है मशावरत की जाएगी, जिसके बाद जो है वो तमाम पार्लिमानी पार्टीज मिल के जो है वो अपना मुश्तरका अलामिया जो है वो जारी। ठीक है, अली अकबर आपका। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी का सीईसी इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज दोपहर 3 बजे शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुनाकिद किया जाएगा। मरीम औरंगजेब की जानिब से ये भी बताया गया है कि कमेटी के अरकान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। मरीम औरंगजेब की जानिब से बताया गया है कोरोना की सूरत हाल और वबा के फैलाव और दीगर मुतल्लिका अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। मरीम औरंगजेब की जानिब से ये बताया गया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी का सीईसी इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज दोपहर 3 बजे शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुनाकिद होगा। मरीम औरंगजेब की जानिब से बताया जा रहा है कि कमेटी के अराकीन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शरीक होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। कोरोना की सूरत हाल, वबा के फैलाव और दीगर मुंसलिका अमूर पर गौर किया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की इम्पैक्ट रैंकिंग जारी कर दी है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया के 85 ममालिक की 766 यूनिवर्सिटीज़ की जांच पड़ताल की। पहली 200 जामियात में पाकिस्तान की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी, जबकि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में लाहौर समेत पाकिस्तान की 17 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। पाकिस्तान से दूसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। पहली 200 जामियात में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का नाम भी शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का नाम भी शामिल किया गया है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिरी फौरी।